وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ سیکورٹی حکام نے بھی وزیر دفاع کی معاونت کی افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ پاکستان نے فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا۔ مذاکرات کا پہلا دور 13 گھنٹوں تک جاری رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دوحہ معاہدے کا خیر مقدم۔ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ معاہدہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ برادر ملک قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں، جس کی میزبانی ترکی کی طرف سے کی جانے والی اگلی میٹنگ میں کی جائے گی، تاکہ افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف اٹھنے والی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ استنبول میں 25 اکتوبر کو وفود کی دوبارہ ملاقات ہوگی، جس میں تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ خواجہ آصف نے سیز فائر معاہدے میں ترکی اور قطر کے کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی اور قطر برادر ممالک ہیں، ہم ان کے تعاون کے بے حد مشکور ہیں۔ سیز فائر معاہدہ خطے میں امن اور استحکام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے مار کے حق میں بھارت کے خلاف عظیم فتح حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہندوستان کے مقابلے میں فتح نصیب کی۔ یہ کامیابی قوم کی دعاؤں اور افواج پاکستان کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ بری، بحری اور فضائی افواج نے مل کر نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستان کے سپاہی سالار نے جرأت اور قیادت کی مثال قائم کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مثالی قیادت سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے معاہدے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان نے عالمی امن کے قیام میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ہندوستان کے مقابلے میں جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم، یہ 24 کروڑ عوام کی دعائیں اور افواج پاکستان کی دلیرانہ اور جو جری جوان افسر ہیں، اور ایئر فورس ہو ہماری، چاہے وہ بری افواج ہوں، چاہے ہمارے وہ بحری افواج ہوں، ان سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اور اس جنگ کو لیڈ کیا ہمارے سپہ سالار جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ افغان طالبان کو پاکستان میں گھناؤنے حملے کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پراکسیز پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ مسلح افواج اور بہادر عوام اس لعنت کو شکست دیں گے۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ کن دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ہمارے دشمن کا فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies. وزیر اطلاعات نے آئی سی سی کے افغان کرکٹرز کے حوالے سے جعلی اور یک طرفہ بیان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ پاکستان جو سرحدی دہشت گردی کا شکار ہے نے کہا کہ آئی سی سی نے بغیر کسی آزاد تحقیقات کے جھوٹے الزامات لگائے ہیں کہ افغان کرکٹرز ایک فضائی حملے میں مارے گئے۔ وزیر اطلاعات نے آئی سی سی کی اس جانبداری اور سیاسی پروپیگنڈے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے اور آئی سی سی کو اپنی غیر جانبداری بحال کرنی ہوگی۔ پاکستان نے آئی سی سی کی موجودہ قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ کھیل کے اصولوں کی پاسداری کرے اور سیاسی مفادات کو کھیل میں شامل نہ ہونے دے۔ پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل ہو گیا۔ پاکستان نے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی سے لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ زمین، سبزے، پانی، شہری علاقوں کا تفصیلی جائزہ لے گا۔ جدید سیٹلائٹ سینکڑوں نوری بینڈز پر درست تصاویر حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہائپر
स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से ज़रई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को है। HS-1 मुल्क को पायदार तरक्की के लिए उभरते हुए खलाई रहनुमाओं में शामिल करेगा। पाकिस्तान की जानिब से इस साल ये खला में भेजा जाने वाला तीसरा सैटेलाइट है। चेयरमैन स्पार को मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ 7 अजला में 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज की खाली नशिस्तों पर तीसरे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग शाम 4 बजे खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल, खवातीन, मजदूर और किसान और नौजवानों के लिए मखसूस खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कोहा, DI खान, एबटाबाद, मानसेरा, मालाकंड, शांगला और अपरदीर की खाली नशिस्तों पर हो रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मजमूई तौर पर 88,359 अफराद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। कुल 66 पोलिंग स्टेशन और 201 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। 23 पोलिंग स्टेशन हसास और 5 पोलिंग स्टेशन ज्यादा हसास करार दे दिए गए हैं। इंतहाई हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने सैलाब मुतासरीन नुकसानात से मुतालिक वफाक और सूबाई हुकूमत के सैलाब मुतासरीन के मसाइल कम करने के लिए कुछ नहीं किया है। खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रूरी नुकसानात के अलावा तमाम मुआवजे अदा कर दिए हैं। पंजाब में अभी सर्वे जारी है, लेकिन वज़ीर आला ने एक दिन पहले अदायगियों का आगाज़ किया है। मुज़म्मिल असलम ने अपनी जारी एक बयान में कहा है कि सैलाब 2025 से कुल नुकसानात 822 अरब रुपए हैं। सैलाब 2025 से 40 लाख लोग बेघर हुए हैं। सैलाब से पंजाब में 631 अरब रुपए के नुकसानात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 51 अरब रुपए नुकसानात, जबकि सिंध में 32 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। फसल कपास का 30 से 34 लाख गांठें, जबकि गन्ने का 13 से 33 लाख का नुकसान हुआ है। चावल पैदावार का 6 से 12 लाख टन का नुकसान हुआ है। सैलाब नुकसानात से बरामदात मुतासिर होंगी। बरामदात में इजाफा होगा। GDP में 1% कमी आएगी। 60 लाख से ज्यादा अफराद की रोजी रोटी बुरी तरह मुतासिर हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं V20 वज़ारती इजलास में शिरकत। इजलास में सरमाए की लागत, कर्ज और तरक्की के रास्ते के मौजू पर बहस हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान में सैलाबों की बढ़ती हुई शिद्दत और तसलसल को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार जोब से भी मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं V20 वज़ारती इजलास में शिरकत। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने लॉस एंड डैमेज फंड को फौरी तौर पर फाल करने पर जोर दिया है। उन्होंने ग्रीन क्लाइमेट फंड में फैसला साजी के अमल को तेज करने की जरूरत को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार जोब से मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मजहर करार दिया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुख्तार जोब को रेकोटेक मंसूबे में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने ज़ेली सतह पर मालियाती ताउन और डिजिटल पेमेंट ट्रांस के हम मंसूबों पर भी IFC की मुआवनत को सराहा है। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना और मुख्तार जोब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया है। कराची में CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर शहरी रहमान का कहना था 1 माह के बाद पार्टी की CEC मीटिंग होगी, जिसमें विफाकी हुकूमत के इक़दामात का जायजा और हतमी लाहे अमल तय किया जाएगा। पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, एक बहुत अहम सतून रहे और हमारी कोई ऐसी मुतालबात है नहीं, हमने कोई मराद नहीं मांगी है, ना हम काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। तो जो मसले मसाइल हैं, जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे। 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पीपल्स पार्टी की CEC होगी, हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह के वो प्रॉमिसेस सामने, उनकी क्या क्या डिटेल सामने आई है और कितने उन्होंने फुलफिल किए हैं, कितने वादे पूरे किए हैं। फिर हम अपना लाएमत भी तय करेंगे। शेखुपुरा में विफाकी वज़ीराना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पंजाब में अवामी फलाह के नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मुल्क में तरक्की हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुई और तमाम प्रोजेक्ट्स नून लीग के अदवार में मुकम्मल हुए। राना तनवीर हुसैन ने मजीद कहा कि अब कोई गुंजाइश नहीं कि कोई हमसाया मुल्क पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाए। बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। अफगानिस्तान ने नमक हरामी की है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर एजेंट बन के या उनकी प्रॉक्सी वार शुरू करेंगे तो यही हाल होगा जो आज है। अब गुंजाइश नहीं है मजीद
किसी को मुसाया या भाईचारे की हम आड़ में किसी को इस किस्म की काम करने थे। हम बातचीत करने को तैयार रहते हैं और मामला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अपने प्रोग्राम की बात करना वो उनका जमहूरी और आईनी हक है। लेकिन अगर कोई तकरीब कारी करेंगे इस नीयत से तो फिर किसी तरीके से भी स्टेट खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हलफ उठाएगी। मुमकिन नाम सामने आ गए। काबीना में शामिल होने वाले अरकान जिनमें मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब, अदनान कादरी, फजल शकूर, फैसल तरकई, आफ्ताब आलम, फ़खर जहान और आकिबुल्ला शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि बाकी वज़रा, मुशीरों और मावनीन खुसूसी का नोटिफिकेशन दूसरे मरहले में जारी किया जाएगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट्स और डेटा एनालिस्ट्स शामिल किए जाएंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्मेंस ऑफिसर्स की भर्ती की उसूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरेकार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसीह के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। अजला में रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक इजाफी जिम्मेदारियां ADCG को तफवीज करने की हिदायत कर दी गई। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा लिया गया। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करवा दी है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ करवाए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ। DG PRA मौज़म अली सिप्रा ने टैक्स अहदाफ और नए सेक्टर्स के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी।